Dear children, welcome to all in English class. Today we read chapter 1 of Honeycomb book, that is 3 questions. This chapter contains 2 comprehensions. Today we read first comprehension, in next lecture we read comprehension 2. Let's start. It is a story of a king and hermit. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? प्यारे बच्चों, यह एक राजा की कहानी है जिसको 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए. क्या उसे उन प्रश्नों के उत्तर का मिले? आओ इस कहानी से जानें. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार राजा के पास आया कि अगर वह 3 चीज़ों को जानता है तो वह कभी असफल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something? ये 3 चीज़ें थी. किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में दूत भेजे जो इन 3 सवालों के जवाब देने वाले लोगों को बड़ी राशि का वादा करता था. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों के जवाब अलग अलग दिए. In the reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारिणी तैयार करनी चाहिए और फिर उसका सख्ती से पालन करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. केवल इस तरह से उन्होंने कहा क्या वह अपने उचित समय पर सब कुछ कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कुछ करने के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव था. The king should notice all the things that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को उस सब पर ध्यान देना चाहिए जो मूर्खतापूर्ण सीखों से बचाता है और उस समय जो भी जरूरी लगता है वह हमेशा करे. Yet another said that the king needed a council of wise men which would help him act at the proper time. फिर अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता थी जो उचित समय पर कार्य करने में उनकी मदद करे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help for others the right time for every action. ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी का हर कार्य के लिए सही समय पर दूसरों की मदद के बिना सही ढंग से निर्णय लेना असंभव था. But the others said that there were some things which could be urgent. लेकिन फिर अन्य लोगों ने कहा कुछ ऐसी चीजें थी जो तत्काल हो सकती थी. These things could not wait for the decision of the council. लेकिन ये बातें परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कुछ करने के लिए सही समय तय करने के लिए भविष्य पर ध्यान देना आवश्यक है. And only magician could do that. और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते थे. The king therefore would have to go to magician. इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answer to the second question, दूसरे प्रश्न के उत्तर में some said that the people most necessary to the king were his counselors. कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके पार्षद हैं. Others said the priests. और कईयों ने पुजारियों को कहा. A few others choose the doctors. किसी ने डॉक्टर्स को चुना. And yet others said that his soldiers were the most necessary. और फिर दूसरों ने कहा उसके सैनिक सबसे आवश्यक है. इन द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए
Some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. कुछ ने विज्ञान को चुना, दूसरों ने लड़ाई चुनी और कईयों ने धार्मिक पूजा को चुना. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि उन सवालों के जवाब इतने अलग थे, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बावजूद उन्होंने एक साधु या बुद्धिमान व्यक्ति की एडवाइस लेने को पसंद किया जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था. The hermit lived in a wood which he never left. जो hermit है वो जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा. यहाँ पे बच्चों wood का मतलब जंगल है. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. और उस hermit ने केवल साधारण लोग ही देखे थे, इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहनने का निर्णय लिया. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. उस साधु की कुटिया के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े अंगरक्षक को दे दिए एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले चल दिए. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस साधु की कुटिया के नज़दीक आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. उन्होंने देखा कि जो साधु है वो अपने कुटिया के आगे एक गड्ढा खोद रहे हैं. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. उन्होंने राजा का अभिवादन किया और खुदाई जारी रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली. जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वो वृद्ध और कमज़ोर थे और जैसे जैसे वे काम करते थे उनकी सांस भारी होती थी. द किंग went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. जैसे ही राजा उन साधु के पास आए, उन्होंने कहा, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए. अब वो सवाल क्या थे? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. वे लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं. बच्चों, यहाँ अफेयर का मीनिंग है थिंग्स और मैटर्स. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. और जो साधु ने राजा की बात सुनी परंतु कोई जवाब नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. और वो खुदाई करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा, आप थक गए होंगे. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे अपनी कुदाल दे दो और अपनी जगह काम करने दो. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. और वो जो हर्मिट थे उन्होंने अपनी कुदाल देते हुए राजा का धन्यवाद किया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और इस तरह वो ज़मीन पर बैठ गए. When the king has dug 2 spades, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बिस्तरों को खोदा और उन्होंने रुककर अपने सवालों को दोहराया. The hermit gave no answer and said and stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. और जो हर्मिट है उन्होंने जवाब नहीं दिया, जो साधु थे उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़े हो गए, कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. परंतु राजा ने कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीता, सूरज पेड़ों के पीछे चला गया और अंत में राजा ने थक हार के कुदाल को ज़मीन में गाड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मैं बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास अपने क्वेश्चनों के जवाब के लिए आया हूँ.
इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बताएं, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes some running, said the hermit. Here comes someone running, said the hermit. और जो साधु थे उन्होंने उनकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा वो देखो कोई आ रहा है। तो बच्चों इस तरह ये कॉम्प्रीहेंशन 1 था। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ हाफ स्टोरी about 3 questions. Hope that you understand this comprehension 1 of the story, especially what are the 3 questions of the king. Dear children, here another lecture to know the answer of the hermit related to these questions. I underline the difficult words in this video. Kindly write the meaning of these difficult words in English as well as in Hindi in your notebook so that your vocabulary of words increases. Moreover, dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions so that you can able to develop more understanding about the story. Thank you. Be happy and safe.